Hello students. So in today's lecture we will see the classical problems of synchronization, and in this we have to study about the in our chapter we are having only two problems, that are the dining philosopher's problem and the reader writer problem. So and we will study about the all the three types of problem. That is, for the first one is a bounded buffer problem, which is also known as producer consumer problem. The second one is dining philosopher, and the third one is reader writer's problem. So let's start with the classic problems of synchronization. So semaphores can be used in other synchronization problems besides mutual exclusion. तो ये सीमाफोर का यूज़ जो हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन में कर रहे थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो यूज इन इट इन द केस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. So these are the three types of problem that I have already told you. That first one is bounded buffer, the second one is dining philosopher, and the third one is reader writer's problem. So let's start with bounded buffer problem. So this problem is generalized in terms of producer consumer problem. This is also known as producer consumer problem. So इसमें क्या होता है कि where a finite buffer pool is used to exchange message between producer and consumer. तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. इसमें क्या होता था कि जो प्रोड्यूसर है ही हैज़ ये एक बफर स्पेस पे जितने भी प्रोडक्शन होता था वो एक बफर स्पेस पे रखता था, और इस बफर स्पेस से जो कंज्यूमर है दैट कम्स एंड टेक्स द आइटम्स और द थिंग्स विच आर बीइंग स्टोर्ड इन द बफर आइटम. और ये कब तक लेता है? जब तक यहाँ पे एम्प्टी ना हो जाए. तो एम्प्टी और फुल का कंसेप्ट होता है यहाँ पे. तो एम्प्टी जब ये कंज्यूमर यहाँ से सारा आइटम्स निकाल लेगा तो ये एम्प्टी हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट द जॉब ऑफ द प्रोड्यूसर विल अगेन स्टार्ट एंड ही विल स्टार्ट फिलिंग दिस बफर वन बाय वन. और जब यहाँ पे फुल हो जाएगा तो फिर वो प्रोड्यूसर का काम खत्म हो गया, फिर से कंज्यूमर. और ये जो प्रोसेस है इट विल गेट रिपीटेड एवरी टाइम. So because the buffer pool has a maximum size, this problem is often called the bounded buffer problem. So this is the reason why it is called as bounded buffer problem. So if a question is asked that what is bounded buffer problem and why the name bounded buffer gets to it, तो इस केस में आंसर यही होगा कि because the buffer pool has a maximum size, so this is also called as a bounded buffer problem. The solution to this problem is creating two counting semaphores, full and empty, and to keep track of the current number of full and empty buffers respectively. So already we have studied about this full and empty concept, so no need to go to it again. So what is the problem statement? So there is a buffer of n slots, यहाँ starting from 1 to n, यहाँ पे n slots है buffer का, and each slot is capable of storing 1 unit of data. So in all the slots there is one unit of data, and there are two processes running, which are known as producer and consumer, and which are operating on the buffer. So producer tries to insert data into an empty slot of the buffer. तो जब ये बफर एम्प्टी रहता है, खाली रहता है, उस टाइम पे प्रोड्यूसर क्या करता है, ये इसमें डेटा इंसर्ट करता है, एंड अ कंज्यूमर ट्राइज टू रिमूव डेटा फ्रॉम अ फिल्ड स्लॉट इन द बफर. तो जब बफर फुल रहता है और फिल्ड रहता है तो उस केस में कंज्यूमर क्या करता है, वहाँ से एक एक करके डेटा को रिमूव करता है. एंड यू माइट हैव गेस्ड बाय नाउ दैट दोज टू प्रोसेसेस वोंट प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड आउटपुट इफ़ दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली. मतलब अगर दोनों एक साथ काम करें, सर प्रोड्यूसर भी इंसर्ट करे एंड कंज्यूमर भी इधर से एग्जिट करे, मतलब रिमूव करे आइटम्स को, तो इन दैट केस दिस विल नॉट execute or this will not work very properly. So there needs to be a way to make the producer and consumer work in an independent manner. So for to remove that inconsistency, हम लोग क्या करते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, दोनों के बीच में एक ऐसा जो बोलते हैं हम लोग कि बीच का रास्ता निकालना. सो वी यूज टू फाइंड आउट अनदर वे. सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग को दिया गया. ये प्रॉब्लम था, दिस इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन. सो वन सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ टू यूज सीमाफोर्स. सो द सीमाफोर्स which will be used here are M. M is a binary semaphore which is used to acquire and release the lock. तो प्रोड्यूसर क्या करता है, जब इसके पास एम्प्टी बफर स्लॉट है तो प्रोड्यूसर पहले लॉक करेगा. अब लॉक हो गया तो कोई इसको प्रोड्यूसर के अलावा यूज़ नहीं कर सकता इस बफर को, और लॉक करने के बाद प्रोड्यूसर एक एक करके यहाँ पे फिल करेगा डेटा.
ठीक है। अब ये यहाँ से अनलॉक कर लेता है, तो अब अनलॉक जब प्रोड्यूसर कर दिया तो नाउ द कंज्यूमर कैन यूज़ इट फॉर रिमूविंग द आइटम्स। तो अब जब कंज्यूमर आ गया तो कंज्यूमर क्या करेगा, ये अपना लॉक लगा देगा। तो आफ्टर द लॉक ऑफ दिस कंज्यूमर नो वन एल्स अपार्ट फ्रॉम द कंज्यूमर कैन यूज़ दिस बफर। तो उस केस में क्या होगा, ये कंज्यूमर अब एक एक करके इसको एग्जिट करेगा और इट विल रिमूव द डेटा फ्रॉम द बफर और बफर स्लॉट। So after removing all the data, it will again release the lock and it will unlock the buffer. So ये एक criteria था, solution था. The second one is empty. तो accounting semaphore whose initial value is the number of slots in the buffer since initially all slots are empty. तो जब ये सारा consumer निकाल लेगा data, तो यहाँ पे ये slot है, this will become empty. And the third is the full case. So in case of this producer, when it has fixed the lock और उस केस में ये क्या कर रहा है, एक एक करके आइटम यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है. सो इन दैट केस द बफर इज फुल. So at any instant the current value of empty represents the number of empty slots in the buffer and the full represents the number of occupied slots in the buffer. तो कितने number of empty and कितने number of how much number of full space or full slots are there in the buffer can be calculated very easily. So this was the solution of this bounded buffer problem. So let's move on to the second one, that is dining philosopher problem. So this is very easy. So the dining philosopher problems involves the allocation of limited resources to a group of processes in a deadlock free and starvation free manner. डेडलॉक फ्री और स्टारवेशन फ्री मैनर का मतलब होता है डेडलॉक दैट इफ वन प्रोसेस नीड सम डेटा एंड दैट डेटा इज बीइंग स्टोर्ड विथ द अनदर प्रोसेस, तो उस केस में क्या होता है, एक दूसरे के वजह से हम लोग एक सर्कुलर कंडीशन में आ जाते हैं जहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाते. सो दैट इज़ द डेडलॉक कंडीशन. तो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम के लिए क्या होना चाहिए, डेडलॉक फ्री और स्टारवेशन फ्री मैनर. तो जब डेडलॉक ही नहीं होगा तो स्टारवेशन भी नहीं होगा. ऐसा हो सकता है क्योंकि स्टारवेशन क्या होता है कि कितने टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइम हम वेट कर रहे हैं, स्टार्व कर रहे हैं फॉर गेटिंग द CPU. सो ये डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम के लिए डेडलॉक फ्री एंड स्टारवेशन फ्री इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है. सो देयर आर 5 फिलोसोफर. तो ये जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है डाइनिंग फिलोसोफर का, वो देयर आर 5 फिलोसोफर सिटिंग अराउंड अ टेबल. एक टेबल है, 5 फिलोसोफर बैठे हुए हैं एंड इन विच देयर आर 5 चॉपस्टिक या फोक्स. वो फोक्स है एंड बिसाइड देम कांटा का चम्मच एंड बिसाइड देम एंड अ बोल ऑफ राइस इन द सेंटर. बीच में एक राइस का बोल है. व्हेन अ फिलोसोफर वांट्स टू इट ही यूजेस 2 चॉपस्टिक, वन फ्रॉम देयर लेफ्ट एंड वन फ्रॉम देयर राइट. सो वो जब भी किसी को यूज़ करना है तो वो एक लेफ्ट से एक राइट से लेता है एंड इट यूजेस 2 चॉपस्टिक. सो व्हेन अ फिलोसोफर वांट्स टू थिंक ही कीप्स डाउन बोथ चॉपस्टिक एट देयर ओरिजिनल प्लेस. जब कोई कुछ सोचता है फिलोसोफर तो वो दोनों चॉपस्टिक को बीच में रख देता है. सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, लेट्स सी दैट. सो कंसीडर देयर आर 5 philosophers सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर डाइनिंग टेबल. द डाइनिंग टेबल हैज़ 5 chopsticks and a bowl of rice in the middle as shown below. So at any instant a philosopher is either eating or thinking. जो जब ईट करता है तो उसके पास 2 चॉपस्टिक होना, जो थिंक करता है उसके पास 0 चॉपस्टिक, वो अपना चॉपस्टिक नीचे रख देता है. So when a philosopher wants to eat, he uses 2 chopsticks, one from their left and one from their right. And when a philosopher wants to think, he keeps down both chopsticks at their original places. So इसका solution क्या है? So from the problem statement, it is clear that a philosopher can think for an indefinite amount of time. हो सकता है कि अब चॉपस्टिक नीचे रख दिया और बहुत लंबे समय के लिए सोच रहा है. But when a philosopher starts eating, he has to stop at some point of time. क्योंकि at some point of time the rice inside the bowl gets finished. तो जब चावल ख़त्म ही हो गया तो क्या खाएगा. So the philosopher is in an endless cycle of thinking and eating. तो अगर ये सोच में ही अगर रह गया तो फिर ये एक endless infinite टाइम के लिए ये प्रोसेस चलेगा. So an array of 5 semaphores, that is stick 5, stick 0 से 4 तक, for each of these 5 chopsticks is being provided. तो ये था इसका डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम. सो देयर इज़ ऑल्सो थर्ड प्रॉब्लम. वी विल सी दिस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.